اپنی پارٹی کے اندر پہلے بھی میری رائے مختلف تھی کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں بنانا چاہیے، لیکن تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لو کہ آئینی اور جمہوری مجبوری بھی تھی۔ 2024 کے الیکشن کے بعد ایک ٹرائیکا بنی تھی، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، دو جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی تھی۔ ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی، پی ٹی آئی نے انکار کیے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لے، ادروائز نہ یہ اسمبلی کھڑی ہو سکتی تھی نہ وفاقی حکومت ہو سکتا تھا۔ اور کشمیر کی جو بات آ رہی ہے، اب کشمیری وہاں پہ نواز شریف صاحب کو اس چیز سے تو انہوں نے منع کیا، ہاتھ پاؤں جوڑ کے، خدا کا واسطہ یہ مت بولنا مجھے کیوں نکالا، ورنہ پھر جے پی کی طرح آروا دے گے۔ چلو آپ کریں جواب، سوال کریں کتنے کریں، پھر اکٹھے جواب لے لیں۔ چلو کرو، میں آپ نے سوال کی، میرے جواب تو جی ضرور۔ آپ کی پارٹی کو سر اتنی شکایات ہیں، ابھی آپ نے سی سی ڈی کی بھی بات بتائی، مطلب آپ کی پارٹی کی بڑی جمہوریت کے لیے سٹرگل ہے ماضی میں، ان سب شکایات کے باوجود بھی سر آپ ان کے اتحادی ہیں، جتنے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں سر، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ، آپ لیجسلیشن پہ، آپ پرائم منسٹر کے ووٹ پہ، آپ اپوزیشن، آپ ہر چیز میں تو اس کے ساتھ ہیں سر، پھر شکایت کس چیز کی ہے؟ نہ بالکل یہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ اچھا سر، آپ نہیں ہے سر ان کی اتحادی؟ میں آپ نے سوال کی، میرے جواب تو جی ضرور۔ ہم ہی حکومت کے جنازے کو ہم نے کندھا دیا اور ہم یہ اپوزیشن کردار ادا کر رہے ہیں۔ دفنائیں اس جنازے کو، سر کیوں کندھا دے رہے ہیں اس کو؟ آپ اس کو گرنے دیں، آپ کیوں سر کندھا دے رہے ہیں؟ چلو آپ کریں جواب، سوال کریں کتنے کریں، پھر اکٹھے جواب لے لیں۔ چلو کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پبلک پلس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انور رضا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے باعث سندھ اور پنجاب کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء ایک دوسرے پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں۔ ایسے میں دیکھنا ہے کہ ماحول کیا ہوگا اور کیا آگے چل کر یہ دونوں اتحاد برقرار رہیں گے یا نہیں۔ یہی جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قادر مندوخیل صاحب کو۔ مندوخیل صاحب جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ گوہر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے ماہر قانون تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ قادر مندوخیل صاحب، شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور ایسے میں آپ وفاق اور بلوچستان میں ان کے اتحادی ہیں۔ کیا آزاد کشمیر انتخابات کے بعد اس اتحاد کو الگ ہوتا دیکھ رہے ہیں یا پھر مسلم لیگ نون اقتدار کی سیاست ہی کو ترجیح دے گی؟ دیکھیے، میں تو اپنی پارٹی کے اندر پہلے بھی میری رائے مختلف تھی کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں بنانا چاہیے، لیکن تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لو کہ آئینی اور جمہوری مجبوری بھی تھی۔ 2024 کے الیکشن کے بعد ایک ٹرائیکا بنی تھی، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، دو جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی تھی۔ ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی، پی ٹی آئی نے انکار کیے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لے، ادروائز نہ یہ اسمبلی کھڑی ہو سکتی تھی نہ وفاقی حکومت ہو سکتا تھا۔ اور کیا دوبارہ الیکشن ہو کے تو کیا اس نے مکہ شریف کی طرح الیکشن ہونا تھا دوبارہ بھی سے زیادہ وہ ہوگا بہتر ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ضمنی انتخابات آ گئے، پھر جب یہ ریزرو سیٹیں آ گئی ہے، تو آج تو مسلم لیگ نون کے پاس 169 ووٹ درکار ہے وزیر اعظم کے لیے۔ ان کے پاس 170 کا فگر موجود ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی اتحادی کا۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کے حوالے سے جو تلخ باتیں کشمیر گلگت بلتستان سے میں شروع کر لیتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں ایک پٹواری شہباز راجہ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا ہے، اس شخص کو اتنی عقل نہیں تھی، پتہ نہیں قانون کی دو جماعتیں پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی ہے۔ اس شخص نے اپنی والد محترم کا ریاست جی بی کو سمجھ کے اور پاکستانی سے این او سی مانگا۔ آپ نے کبھی سنا ہے پاکستان کے اندر ایک دوسرے حلقے سے صوبے سے این او سی مانگے؟ اس شخص نے مانگے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو چھوڑا، کچھ کو نہیں چھوڑا۔ پھر بتام زمانہ سی سی ڈی پولیس پنجاب سے بلایا۔ یہ جی بھی ایک وفاقی ٹیریٹری ہے، آپ کو وفاق کا جو فورسز ہے اس میں سے لینا چاہیے۔ آپ نے من پسند صوبے سے بدنام زمانہ پولیس جو الجزیرہ ٹی وی کا رپورٹ ہے اس کے بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن کا رپورٹ ہے کہ سی سی ڈی نے 22 سے زیادہ لوگوں کو ماروا عدالت یعنی قتل کر چکی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں ایک معصوم بچی جو آسٹریلیا سے آئی تھی، کس طرح گولیوں سے ماں باپ کی گود میں اور پکڑا گیا ہے ایک آدمی، وہ ساری گولیاں ایک آدمی نے چلایا ہے۔ اور سی سی ڈی کا سربراہ بڑا ٹائی کوٹ پہن کے بڑے بے شرمی سے جا کے وہ
تعزیت کرے اور تعزیت کے ساتھ کرے ہم قاتل ہیں اور تفتیش بھی ہم ہی کریں گے. تو یہ تو ساری صورتحال ہے. پھر اس کے بعد آپ نے الیکشن کا رزلٹ دیکھا. جب 5 بجے پولنگ بند ہوا تو 6-7 بجے تک ہماری 9 سیٹیں تھی، نون لیگ کی 2 تھی. اور پھر اس الیکشن کو رزلٹ کو پوسٹ پون کی ہے، پرولونگ کی ہے. ہمارے وہی 9 تھی، نون لیگ کی 6 ہو گئی. چلو خیر ہے، یہ بھی لے لو. پھر جو 4 آزاد امیدوار تھے جو ہماری اکثریت تھی، وہ یقیناً ہماری طرف دیکھ رہے تھے جو پارٹی حکومت بنا سکتی تھی. شہباز شریف صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے. ان کا جو سابق وزیر اعلیٰ وہاں پہ میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھا، اس نے بولا کہ بھائی ہم جیت رہے. تو جب اینکر نے پوچھا آپ کے وزیر اعظم نے، تو باقاعدہ اس کو مبارکباد دی ہے. کہہ رہے نہیں، وہ ہمارا صدر تھوڑی ہے، ہمارا صدر تو نواز شریف ہے. یعنی اس کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے جمہوریت کا بھی ایک عجوبہ شکل کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. قومی اسمبلی میں اس وقت دوسری بڑی پارٹی جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی ہے، جبکہ ان کی سیٹیں پوری ہے. ہم چاہے تو اپوزیشن لیڈر لے سکتے ہیں، مگر ہم نے نہیں لیا. جی پی میں انہوں نے وزیر اعلیٰ جی پی پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دیا، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی لیا اور اپوزیشن لیڈر بھی لیا. ایسا کبھی عجوبہ جمہوریت کا آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا. چلو خیر ہے. اب کشمیر کی جو بات آ رہی ہے، اب کشمیری وہاں پہ نواز شریف صاحب کو اس چیز سے تو انہوں نے منع کیا، ہاتھ پاؤں جوڑ کے، خدا کا واسطہ یہ مت بولنا مجھے کیوں نکالا. اور نہ پھر جے پی کی طرح آروا دے گئے، اس نے ایک نیا فلسفہ نکالا. میں 10 سال پہلے جب تھا وزیر اعظم، میں نے جو کام کیا اس کے بعد ایک آدمی نے ٹکے کا کام نہیں کیا، اور سب جو ہے نا عوام کو دھوکہ دے رہے تھے. اچھا مندوخیل صاحب، یہ حکومتیں ایسے کام اپوزیشن کے ساتھ کیا کرتی ہیں. اپنے بھائی کو مندوخیل صاحب، حکومتیں ایسے سوری سر، مندوخیل صاحب آپ سے ایک بڑا سمپل سا سوال ہے. عجوبہ تو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں سر کہ کیا کہیں. اس میں سے سر ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی پارٹی کو سر اتنی شکایات ہیں. ابھی آپ نے سی سی ڈی کی بھی بات بتائی، مطلب آپ کی پارٹی کی بڑی جمہوریت کے لیے سٹرگل ہے ماضی میں. ان سب شکایات کے باوجود بھی سر آپ ان کے اتحادی ہیں. جتنے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں سر. آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ، آپ لیجسلیشن پہ، آپ پرائم منسٹر کے ووٹ پہ، آپ اپوزیشن، آپ ہر چیز میں تو اس کے ساتھ ہیں سر. پھر شکایت کس چیز کی ہے؟ نہ بالکل یہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اچھا سر، آپ نہیں ہے سر ان کی اتحادی. میں آپ نے سوال کی، میرے جواب تو جی ضرور. ہم ہی حکومت کے جنازے کو ہم نے کندھا دیا اور ہم ہی اپوزیشن کردار ادا کر رہے ہیں. دفنائیں اس جنازے کو. سر کیوں کندھا دے رہے ہیں اس کو؟ آپ اس کو گرنے دیں. آپ کیوں سر کندھا دے رہے ہیں؟ چلو آپ کریں جواب، سوال کریں کتنے کریں، پھر اکٹھے جواب لے لو. چلو کرو سر. ہمارے بالکل آپ ضرور اکٹھے جواب دیں. ہمارا سمپل سا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت بنی، پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ آئینی ترامیم ہوئی، پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت اور نظام چل رہا ہے. تو سر انور رضا اور یہ خاکسر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. آپ کی تو سر کندھے کی وجہ سے وہ جنازہ چل رہا ہے جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. تو سر آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے. چلو آپ نے سوال کری، اب تعمل سے میرے جواب سے. جی میں نے کہا کہ ہم نے حکومت کی جنازے کو کندھا بھی دیا ہوا ہے اور ہم ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرے، یعنی عوام کی باتیں کر رہے ہیں. کہاں ہے پھر کیا تو بجٹ کے اوپر انہوں نے مہنگائی کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، سرکاری ملازمین کے تنخواہوں کے اوپر کبھی کوئی آپ کو نظر آئی؟ ایک منٹ مجھے ون بائی ون جواب دے دیں. جی دوسری بات یہ کہ 26ویں ترمیم پاس ہوا. 26ویں ترمیم 18ویں ترمیم کی طرح پاکستان میں متفقہ ایک ترمیم تھی. کیا پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ذریعے ان بورڈ نہیں تھی؟ کیا رؤوف حسن اور گور خان کا بیان ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے کہ اسے تو اچھا ترمیم ہی نہیں ہے؟ وہ تو الگ بات ہے کہ جب عمران خان کے پاس گیا انہیں موٹی موٹی گالیاں دی، کم وقت ہو مجھے جیل سے باہر نکالو، تم لوگ کس چکر میں لگے ہو. وہ 12 کی منہ کر کے آج مولانا صاحب سے پوچھو، وہ یہی بات کرے کہ جو میں کروں. 27ویں ترمیم جو ہم نے حکومت کا ساتھ دی ہے، حکومت نے تو بڑے لمبے چھوڑے. وہ کیا تھا، وہ کالے لفافے میں وغیرہ وغیرہ، آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی ہوئی. اس 27ویں ترمیم میں ہم نے 2 چیزوں پہ ان کے ساتھ حمایت کی ہے، باقی ساری چیزوں پہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. 2 چیزیں یہ تھی، ایک آئینی عدالتیں جہاں میثاق جمہوریت میں بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کا، عمران خان کا، مولانا فضل الرحمان کا، ان سب کا متفقہ ایک وہ تھا. وہ دوسرا آرمی ایک 1952 جو آرمی کی اندرونی جو عہدے تھے اس کے حوالے سے، اور یقیناً اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان دونوں چیزوں پہ ہم نے اتفاق کیے. اس کے علاوہ ہم نے باقی ساری چیزیں ریجیکٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب. اب آپ
अगर आप इजाज़त दें तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून अंजुम अकील साहब भी मौजूद है, उनको भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अंजुम अकील साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। शजील मेमन साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून फार्म 47 की गवर्नमेंट है, आप पर बड़े इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद आपको ऐसे इत्तेहाद की ज़रूरत है कि जो आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? देखें जी, इनकी तो समझ नहीं लगती कि ये कैसी इनकी पार्टी है, कैसी सियासत है। देखे ना, इधर आप सदर पाकिस्तान ही बन के बैठे हुए हैं, इधर आप गवर्नर बन के बैठे हैं सूबों को, चेयरमैनशिप भी आपके पास है, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको वहाँ बनाने में वोट हमने दिए हैं साथ। तो ये इतनी मैं समझता हूँ तनकीद करना कोई जायज बात बनती नहीं है कि चलो इन्होंने ज़ाहिर है अपने लोगों को खुश करना है, हुकूमत के खिलाफ बात करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि ये 7 कोलिशन में शामिल हैं, तो इसलिए लोगों को मुतमईन करने का और तरीके भी बहुत हैं इनके पास। लेकिन इस तरह अपनी इत्तेहादी गवर्नमेंट को, जिसमें आप सदर पाकिस्तान बन के बैठे हैं, उस तरह तनकीद करना, तो क्या लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि वो कोई समझ नहीं रहे कि क्या ड्रामा चल रहा है, किसके लिए सब कुछ हो रहा है। लोग बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग बड़े बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि कौन क्या है, और फिर जो डिलीवरी देखें तो उसके लिहाज से भी खाली नहरों पे आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, लोग तो देखते हैं किसने डिलीवर किया है, किसने मुल्क आज पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये फख्र से कहता हूँ, और मुल्क में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आते हैं। और इसी तरह अगर पंजाब के हालात देखें आज, गुजारिश है, ठीक है, आपने मोटिवेशन में बनाई, सर गुजारिश है वाजना कर लें कि देख लें कि पंजाब कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। सही है। ये तो अंजुम साहब गुजारिश है, कादिर मंदोखल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अंजुम साहब गुजारिश है, सिर्फ एक सवाल बैरिस्टर साहब, उनके दौर में क्या काम हुआ, और आज वसाइल वही है, सूबा भी वही है, और उसमें आज जो काम हो रहा है अंजुम साहब आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। इसी तरह सिंध के अंदर जो हालात है वो भी आप देख रहे हैं। अंजुम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बारिश आती है और पूरा सैलाब आ जाता है, तो ये सारी चीजें इनको लोग नहीं देख रहे। कादिर मंदोखल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको भी चार्जशीट किया जा रहा है। अखिल साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। और इनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि अंजुम अकील साहब, आपको आवाज आ रही है? ये रेडियो है, किसी और की बात आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप अपना सवाल कीजिए। अंजुम अकील साहब, आपको आवाज आ रही है? बात नहीं सुनेगा। जी आ रही है, जी आ रही है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आपके बड़े गिले होंगे पीपल्स पार्टी से कि सही नहीं कर रहे, और सिंध को और पंजाब को कंपेयर कर लें, और सिंध तो बिल्कुल नहीं चल रहा, और पंजाब में तो क्या कमाल हम देख रहे हैं। इसी तरह सर कादिर मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि देखें पंजाब के अंदर तो सीसीडी बंदे को सवाल बाद में पूछती है, गोली पहले मारती है, और क्या क्या आप लोगों ने अजीब तरामीम करने की भी कोशिश की जो पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट की, अभी हमें बता रहे थे सर भी। सर अगर आप उनसे, कादिर मंदोखिल साहब बता रहे थे, सर अगर अंजुम साहब अगर आप पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है, आपके ख्याल में वो जहां पे हुकूमत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी सिंध में, वहां पे उन्होंने बर्बाद कर दिया है, और वो आपसे खुश नहीं है कि आप जहां हुकूमत कर रहे हैं आपने सीसीडीज और क्या क्या कर दिया है, तो सर आप इत्तेहादी क्यों हैं? नहीं, हम खुश हैं, हम पीपल पार्टी से खुश हैं। वो देखें सर, वो सर अभी आपने सिंध की गवर्नेंस की बात की कि वो ठीक नहीं चला रहे सिंध को, ये खुश है सर आप? साथ दिया है, सिंध की गवर्नेंस पे खुश है? ये अब पीपल पार्टी ने अपनी सियासत शुरू की है, ये अपोजिशन की, अब प्योर अपोजिशन बनना चाहते हैं। उनके ऐसी बातें हैं जो कि एक कोलिशन गवर्नमेंट को सूट नहीं करती, ऐसे बात करते हैं, क्योंकि लोग बड़े इस पे सर आप सिंध की गवर्नेंस से खुश हैं जो आप अभी फरमा रहे थे, इसलिए जी आपके ख्याल में सिंध में गवर्नेंस ठीक हो रही है सर? देखिए, सिंध में गवर्नमेंट से गवर्नेंस ठीक होती तो मैं खुद कह रहा हूँ, जिस तरह आज पानी के 2 कतरे गिरते हैं और पूरा एरिया शराब में आ जाता है, लेकिन वो उसका ज़ाहिर है सिंध में गवर्नमेंट कौन की है, 18 एनवायरमेंट के बाद सारे इख्तियारात उनके अपने पास हैं। अब वो तो सर आप अगर खुश नहीं उनकी गवर्नेंस से क्यों इत्तेहादी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग उस हिसाब से इनको डील करेंगे। मंदोखल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अखिल अंजुम साहब ने आपको चार्जशीट किया है, सिंध की गवर्नेंस पे उन्होंने सवाल उठाया, लोग देख रहे हैं
इस पे आप ही जवाब दीजिए। लेकिन ये है कि हमारा उससे सिंध से लेना देना नहीं है कि जो अच्छा, आपका कर सिंध रहे से हैं, लेना बुरा देना कर नहीं रहे हैं, सर, करना पाकिस्तान चाहिए, का हिस्सा है वो। करना चाहिए। ये मेरे ख्याल मंदोखेल साहब ने कुछ कहना है। और सर मंदोखेल साहब आप पाकिस्तान का फरमाइए। हिस्सा है, कोई लेना देना रखें थोड़ा सा। मंदोखेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी उनकी जी सच्ची बात दिल पे निकल आई है, जब दिल की बात जबान पे निकल आई है। शहबाज शरीफ साहब, मैं इस वक्त बैठा हूँ NA-220 यहाँ मुंह उठा के आ जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, 2 रुपए का काम नहीं दिए, 5 साल से वज़ीर आज़म है। कराची जहाँ 70% रेवेन्यू देता है, इनका लेना देना नहीं है, इनका लेना देना सिर्फ लाहौर से है। यहाँ 70% रेवेन्यू देने वाला एक मोटरवे नहीं है पूरे सिंध में। इनका कोई लेना देना नहीं है कराची से। यहाँ ग्रीन लाइन का मंसूबा पिछले 7 साल से 8वां साल है चल रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं जी। है। यहाँ कराची वाले जो वफाक का मंसूबा है K4 मंसूबा पिछले 24 साल से इल्तवा का शिकार है, इन्हें सिर्फ 10 अरब रुपए साल दिए, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सच्ची बात की उन्होंने दिल की बात। और फिर अगर गंदम जो है ना वो सिंध पंजाब से सिंध आते हुए ट्रक पकड़ा गया तो गंदम स्मगल हो रहा है। आइन के आर्टिकल ये अभी तक ये मोटरवे दिया किसने दिया है? ये मोटरवे जो बनी है आपने किसने दिया है? और आगे जो मोटरवे मजीद हम दे रहे हैं वो मुस्लिम लीग वो नहीं दे रही है ना, कौन दे रही है? आपने कौन सी बड़ी शराब बनाई है? बात ये है कि बात तो कर रहे हैं, बात ये कि लोग मिनट के बाद ये जिम्मेदारी सुबह की आती है, सुबह क्या कर रहे हो ये देखें आप। ये एंकर साहब ये अपना अंजुम साहब उनको जरा बात कंप्लीट कर लें। जी आप अपना मौक़िफ़ जरूर सामने रखिएगा। ज़ाहिर है आप इत्तेहादियत। जी मंदोखेल साहब, अब मुझे बताओ, जो मरियम नवाज ने कल घटिया गुफ्तगू की है मेरे चेयरमैन के बारे में, वहाँ कश्मीर में कुल के लाहौर में ये पंजाबन बन जाती है, कश्मीर में जाके वो कश्मीरी बन जाती है। इनका डोमिसाइल चेक करो है क्या चीज। जो घर बना है वो है अपना, उसका क्या नाम है, उसका भूल गया, उसका घर का रायवंड की बात कर रहे हैं आप? रायवंडी क्या नाम है उसका, नाम तो दूसरा है उसका। वह जो रखा हुआ है वो हिंदुस्तान है। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान के पंजाब के पंजाब के ये खुद ही, अल्लाह न करे कल ये सिंध पहुंच के सिंधी न बन जाए। सवाल ये कि ये मतलब ये पीर बगाड़ा मरूम का ये अल्फाज याद रखना। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून वो जमात है जब ये मजबूर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, मजबूरी निकल आते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। तो अब ये क्यों इत्तेहादी है इनके सर, इस तरह की जमात की आप क्यों इत्तेहादी? मेरी बात सुनो, बात ये होता ना, आपको एक लफ्ज समझ में आ गई हम क्यों इत्तेहादी? हम तो आज ही रहना चाहते हैं। बात सुनो, सुन ले यार, दोबारा सुन ले। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से पूछा करे। मेरी बात सुन, सवाल ये मैंने आपको बोला है ना कि इनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। जो आइन में तरमीम होता है, जो काम अच्छे होता है उसको हम सपोर्ट करते हैं, जो अच्छे नहीं है उसकी मुखालफत करते हैं। हम PTI की तरह नहीं है, खान को रिया करो, खान को रिया करो, बाढ़ में जाए आवाम की कोई बात ही नहीं करता है। हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो चाहता है ये जमहूरी पटली जो है ना, आपको याद है खुरम दस्तगीर का बयान आया था पिछले दिनों में? नहीं, खुरम दस्तगीर का नहीं, इनका वफाकी वजीर पार्लिमान ये मुल्क के डॉक्टर फजल चौधरी का बयान रिकॉर्ड में मौजूद है। उसने बोला कि अगर तरमीम सही तरीके से नहीं माना गया तो जबरदस्ती भी हो सकती है और ये डिटेल भी। ये तो मेरी बात सुनो, मार्शल के पैदावार है, इनको जमहूरियत का क्या लेना देना? जीबी में हमारे वज़ीर-ए-आला को सपोर्ट इतनी चार्जशीट और वो कह रहे हैं कि अब शायद आपको जरूरत नहीं रही, अब आप गले पड़ना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के। बात यह है कि आप रिकॉर्ड निकाल के देख रहे हैं। सबसे ज्यादा तनकीद पहले किसने शुरू की है, उस तनकीद का फिर जवाब देना पब्लिक में जरूरी पड़ता है। देखें जी, हम तो पीपल पार्टी के साथ कोलिशन में हैं और हम कोलिशन कायम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पीपल पार्टी कोलिशन में रहकर अपने सूबे की भी खिदमत करे। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कौन सी अपोजिशन किसके इशारे पर ये क्या कर रहे हैं कि इतनी खुल के मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। या तो कोलिशन में रहते हैं तो फिर तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि ऐसी बात कल फिर हमने इकट्ठा बैठना है, और जब इकट्ठा बैठना है तो फिर हमें आंखें एक दूसरे से नीचे नहीं करनी चाहिए कि हमने एक तो दूसरा इतना गलत बोला है। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कोलिशन रखना चाहते हैं और इनको साथ चलाना चाहते हैं। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर मोटरवे हैदराबाद तक पहुंची है तो पहुंचाई है और आगे भी इंशाल्लाह अब करो आगे जा रही है तो वो ये लेकर जा रही है। के प्रोजेक्ट कोई मोटरवे नहीं है अंजुम साहब, जरा तारीफ पूछते हैं कि अच्छा अंजुम साहब, गुजारिश है, सॉरी सर, आपसे भी और मंदोखेल साहब से भी, दोनों से गुजारिश,
सर, लोग जो कि इस मुल्क में सियासत को थोड़ा सा देख रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों का ये इल्जाम है आप दोनों पार्टीज पे कि आप आपस में एक मुका करके बैठे हुए। वो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की दलील देते हैं। वो कहते हैं कि वो आप सिस्टम के साथ मिल गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि असल में आप एक मुका करके आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा पहले भी सियासत करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं। और आपकी अभी की गुफ्तगू सुन के, जिसमें अभी मंदोखिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, शहबाज शरीफ साहब ने कराची से इलेक्शन लड़ा, उनके अल्फाज मेरे नहीं, कि 2 रुपए का काम नहीं किया वहां पे। कभी कश्मीर जाते हैं तो कश्मीरी बन जाते हैं, तो पंजाब आते हैं तो पंजाबी बन जाते हैं, तो जाति उमरा का नाम है उसमें। सॉरी सर, मैं सवाल पाकिस्तानी सर आप जो मर्जी जवाब दीजिएगा, सवाल सुन। पाकिस्तानी है सर आप सही कह रहे हैं, सर आप सही से अगर आप अपना सवाल दोबारा फ्रेम करें ब्रेक के बाद तो बेहतर नहीं। जरूर। जी जी, मगर वहाँ के मैं पंजाबन हूँ, कश्मीर में जाके मैं कश्मीरी हूँ। ये धोखा जो ना आवाम को नहीं दे सकती है। पंजाबी है तो इसमें कौन सा घर है? आज पूरा पाकिस्तान अपना घर है, घर बनाएंगे। सर अंजुम वकील साहब, अभी 2 मिनट पहले आप कह रहे थे सिंध का मसला है, वो हमारा मसला नहीं है। वो सर पंजाब, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है सिंध। चले अंजुम वकील साहब, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अंजुम वकील साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इल्जामात हैं, अगर आप इजाजत दिए, इल्जामात हैं, इसका मतलब है अपोजिशन का जो बयानिया था इंतखाबात के हवाले से, उसको तकवीत मिल रही है। वो कहते हैं कि वो भी यही बात कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी यही बात कर रहे हैं। तो ये बड़े संगीन इल्जामात हैं कि आपके इंतखाबात में फॉर्म 47 के जो बात की जा रही है, वो अगर आपके इत्तेहादी कर रहे हैं तो दुरुस्त है। चलिए, अपोजिशन तो इल्जामात लगा रही थी, इसके बाद क्या सूरत डेवलप हो रही है? देखिए, मैं तो यहाँ पे मैं हर जगह मिसाल देता हूँ। जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, इन्हें 242 में बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट के माड़ी कराची का, ये शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का है। 2018 में इलेक्शन लड़ा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में फैसल वाडा साहब जीत गए। 2024 में फैसल वाडा को नायल करा के ज़मीनी इंतखाबात पे मैं जीत चुका हूँ, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा कमाल को हरा के। 2024 में 47 के तहत मुस्तफा कमाल को इस्तग़फ़ार तो फिर हुकूमत के इत्तेहादी होने के पढ़ रहे हैं। जी जी, देखना अंजुम वकील साहब, ये बात अपोजिशन करती है, सर हम उसके बयानी को नहीं मानते। आप इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप फॉर्म 47 की पैदावार है, जाली मैंडेट है आपका, तो फिर मुझे बताएं इस इत्तेहाद को कैसे देखते हैं? क्या आवाम को हम बेवकूफ बना रहे हैं? मैं आपका सवाल नहीं समझा, आप सवाल क्या कर रहे हैं? नहीं सर, मैं आपसे नहीं, मंदोखिल साहब, मैं अंजुम वकील साहब से मंदोखिल साहब, सॉरी मंदोखिल साहब, हुआ ये, सॉरी शायद आप, क्योंकि आप जूम पे हैं तो आपको पता नहीं चला। आप आगे आप कि जो जब आप ये अपना बयान कर रहे थे तो अंजुम वकील साहब इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे, तो वो पूछ रहे हैं अनवर साहब उनसे कि आप क्यों इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं? ये तो इत्तेहादी अपना एक बयान कर रहा है आपका। तो उतनी देर में मेरा ख्याल है, आई डोंट नो वेदर अंजुम वकील साहब हमारे साथ हैं। जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, वो आजाद कश्मीर में। मंदोखिल साहब, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं यहाँ से 2021 का इलेक्शन भी जीत चुका हूँ, 2024 का इलेक्शन भी जीत चुका हूँ। फॉर्म 47 के तहत मुस्तफा कमाल को दे दी गई, जिसके वोट टोटल 3800 थे। और ये 2 महीने पहले इलेक्शन से मुझे फैसल वाडा ने बता दिए कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, और ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। मैंने यहाँ सिंध के करते दर्दों से भी मुलाकात की कि खुदा रहा, मुझे हिमायत भी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जब इलेक्शन वाला दिन जो फिर काम हमने किया है, वो फिर पूरा अलमी मीडिया ने छापा, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, मैं अंजुम वकील साहब से ये एक सवाल कर रहा हूँ कि आप मरियम बीबी, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ साहब का और अता तारड़ का जो बिलावल के मुकाबले में खड़े थे, उनका फॉर्म 45 दिखा दे। खुदा की कसम जिंदगी में कभी सियासत और वकालत की बात नहीं करूंगा। ये सारे ये बहुत बड़ा चैलेंज है अंजुम वकील साहब, हुकूमत पे आए, आप क्या बातें करे हो? ठीक कह रहे हैं अंजुम साहब। मेरा ख्याल है अंजुम वकील साहब हमारे साथ नहीं है, साथ है अंजुम वकील साहब, सॉरी जी। मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि आप मरियम साहिबा का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और अता तारड़ साहब का, अगर आप फॉर्म 45 सामने 47 तो पे तो जीते ही हैं ना, 45 अगर सामने ले आए, मंदोखिल साहब फरमा रहे हैं, तो वो, और उसमें वाकई आप जीते हुए तो वो सियासत और वकालत दोनों छोड़ देंगे, क्योंकि आप इतनी बुरी तरह उन सीटों पे हारे हुए। जी अंजुम साहब,
जी जी देखें जी, बात यह है, अब 2.5 साल गुजर ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं सर? 47 से निकल कर अवाम ने जो मैंडेट दिए हैं उनके मुताबिक आगे जाना चाहिए और अवाम को कुछ डिलीवर करना चाहिए। देखें हमारी हुकूमत तो आपके सामने है कि जिस तरह अंजुम साहब, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लें, कहें हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा देते हैं फॉर्म 45, क्या मसला है सर इसमें? आप जीते हुए, आपको लोगों ने वोट दिए हैं। ये 45 वाले, अब 45 तो किसको हम ये जवाब दे तो नहीं है ना हर बंदे के, लेकिन 45 है तो सारे इत्तेहादी हैं आपके। सर आप इत्तेहादी हैं, कल हमारा शो है 7 बजे, आप अभी चैलेंज एक्सेप्ट करें, कहें कल मैं 7 बजे टीवी पे ये दिखा दूंगा, आप सर कल वापस इनवाइटेड हैं, हम मंदोखिल साहब को भी वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल। मंदिर साहब को क्या मैंने दिखाना, क्या करना है? 45 का फार्म अगर इनको दिखा दो फिर ये क्या करेंगे? अगर दिखा देंगे फिर वो सियासत भी छोड़ देंगे। सर वो कह रहे हैं मैं सियासत और वकालत छोड़ दूंगा। सर कितनी बड़ी आपने देखे 45 के फार्म है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के कराची के हल्के में जो अपोनेंट है वो कह रहे हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा। को क्या जवाब दे उन्हें? हमने जो किया है वो पूरी दुनिया देख रही है, मुस्लिम लीग नून ने दुनिया ने देखा है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है और फिर फील्ड मार्शल आसम नीर साहब ने किया है जो कुछ, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। नहीं उस पर तो शक की कोनी है। सैयद आसम नीर साहब ने जो कुछ किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो बड़ा प्राउड है, पूरा पाकिस्तानियों को फख्र है। इनसे पूछें कि अब आपने अपने अवाम के लिए क्या किया है? आप जो बताया जी मंदोखिल साहब, आपने अवाम के लिए क्या किया है? कह सकते हैं अपने सूबे को पंजाब के साथ, ये पूछे सवाल। अब मैंने पूछा जी आपके रेफरेंस से पूछा। बिल्कुल आपने सही कहा, वो गलत सवाल पूछ मैंने आप ही के रेफरेंस से पूछा। कुछ और पूछना चाहिए जो आप पूछ रहे हैं। मंदोखिल साहब ने सुना आपसे सर कौन, वैसे भी अंजुम साहब आपसे कौन सवाल पूछ सकता है? जो सवाल मुनासिब है वो तो आप ही पूछ सकते हैं, बाकी तो गलत सवाल ही पूछ रहे हैं। काजी साहब आप बताएं, आप गलत सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए अगर मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ तो ये साबित कर दे और 2 जूते मेरे सर पे मार के अगर फॉर्म 45 ने दिखा दिए तो मुझे झूठा करार दे, मेरे सर पे जूते मारे अगर मैं गलत हुआ, मैं सियासत छोड़ दूंगा, वकालत छोड़ दूंगा, कभी जिंदगी में मीडिया पे आने की गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं चैलेंज कबूल कर दिया। अंजुम साहब एक चैलेंज कबूल करें शहबाज शरीफ साहब के जो मेन ओपोनेंट। जब भी आप चैलेंज कबूल करने की बात करते हैं लाइन ड्रॉप हो जाती है। मंदोखिल साहब मुझे ये बताइए कि क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके बाद आपकी क़यादत सोचेगी कि हमें इस इत्तेहाद से अलग होना चाहिए, या फिर आप भी इक़्तिदार की सियासत को तरजीह देंगे? देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद ये एहतियात बरकरार रहेगा। ये बड़ी बात है। जो है ना वो पहले से चाबी खिलौने की प्लास्टिक की खिलौने की जो है ना वो चाबी घुमा दी है राना सनाउल्लाह की, जो कल पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो शुरू हो गया। आज मुखबर खास मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, तो मुझे लग रहा है ये खिलौने के लोग हैं, इनको चाबी घुमा देंगे, सामने गेट तक जाएंगे, मुंह के बल पर गिरेंगे। इनकी यही है। आप मुझे बता दो कि मुस्लिम लीग नून के पास 170 का फिगर मौजूद है, 30-40 MNA PTI के अंदरूनी थाना इनके साथ मिले हुए हैं। ये बड़े भाई की ख्वाहिश पूरा करके बेचारा कहते हैं मुझे कश्मीर का बना दो, दरअसल ये वो कहना चाह रहे हैं मुझे पाकिस्तान का बना दो। अच्छा वो कश्मीर का सकते, वो तो MLA नहीं है। अच्छा नवाज शरीफ MNA तो है ना पाकिस्तान का, वो गरीब ने ये ख्वाहिश पूरा कर दे कि वो अभी तो आपको पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है, MQM की भी जरूरत नहीं है, आपके अपने वोटों से आप उसको वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हो, क्यों नहीं करेंगे नवाज शरीफ साहब? सर आपके ख्याल में वैसे मंदोखिल साहब, मंदोखिल साहब सॉरी एक सेकंड नहीं ये बड़ा जरूरी। मंदोखिल साहब वो उनके कायद भी हैं, उनके लीडर भी हैं, आप तो जानते ही हैं कि सारे पाकिस्तान के अंदर सारे दिलों के वजीर आजम भी हैं, तो आपके ख्याल में सर क्यों नहीं बना रहे उन्हें आजाद कश्मीर का वजीर आजम को? वजह होगी? नहीं वो बता रहे हैं कि वफाक का वजीर। एक सेकंड, अगर आजाद कश्मीर का बना दे तो सर क्या आपके ख्याल में वजह है, क्यों नहीं बना रहे? इस वजह से नहीं बना रहे कि ये जो कंप्यूटर में फीडिंग होती है उसमें ये माइनस हो चुके हैं, जैसे माइनस इमरान खान हो चुका है, माइनस अल्ताफ हुसैन हो चुका है, माइनस नवाज शरीफ हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में। ओके। और फिर इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने ब्लैकमेल की अपने छोटे भाई को। मैं आपको पार्टी के तौर पे उस वक्त कबूल करूंगा मेरे बेटे को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना दे, मेरे समधी को वजीर खारजा बना दे, नायब वज़ीर आज़म बना दे, और मेरे बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ को बमाए बांजी वफाकी वजीर बना दे। आज क्या मजबूरी है कि नून लीग ख्वाजा आसिफ को बर्दाश्त कर रही है? ये शख्स जो मुल्क का वजीर दिफा है, ये हिंदुस्तान के साथ जंग में कहां छुपा होता? पूरी दुनिया में सफारतकारी, वजीर दिफा, वजीर खारजा
वजीर इत्तेफाक के किरदार तो बिलावल भुट्टो कर रहे थे, ये कहाँ छुपा होता? कभी आपको फौजियों के साथ बॉर्डर पे किसी बैरक में नजर आए? फील्ड मार्शल हर जगह घूम रहे थे, कोर कमांडर घूम रहे थे, फौजी घूम रहे थे। अमेरिका का जो है ना ईरान की जंग में जो है उनका वजीर दिफा फौजियों के साथ खड़ा था, हमारे वजीर दिफा कहाँ छुपा हुआ था? ये सिर्फ मजबूरी है शहबाज शरीफ की, और बाबा उसको सब्जी मंडी का वजीर बना दे, किसी और महकमे का बना दे, और वजीर बना दे। मंदो खैल साहब, अगर आप इजाजत दीजिए तो मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। अंजुम वकील साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर जलसे में एक, मुझे लगता है कि अंजुम वकील साहब की लाइन फिर ड्रॉप हो गई है। चलिए मैं अब्दुल कादिर मंदो खाल साहब से ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पर एतराज़ भी किया, उनकी जमात ने। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा एक जलसे में कि बसेज ई बसेज होनी चाहिए, ग्रीन बसेज, और वो आज बसेज वहाँ पर पहुँच गए हैं। मंदो खाल साहब, क्या ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं, और इसको आप सियासी रिश्वत के तौर पर नहीं देखते? देखिए, ये तो मैं आजाद कश्मीर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, और मैं मेरे पार्टी के लोग भी कहते हैं, हर शो में बात करते हैं। तो जिस तरह जीपी का इलेक्शन वो एक पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराया था, तो क्या आजाद कश्मीर का चीफ इलेक्शन भी उसी तरह बनना चाहते हैं? कौन है पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर? एक सूबे का सिटिंग वजीर आला धड़ल्ले से ऐलानात कर रहे हैं, बसें भेज रहे हैं, इनकी वाली साहब की बसें जिस तरह भेज रहे हैं, वो पहुंच गई है बसें, वो चाइना से मंगाए होंगे। वो मंदो खैल साहब, वो बसेस आजाद कश्मीर में पहुंच चुकी हैं। तो मेरे भाई मैं यही कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कहाँ सत्तू पे के सोया हुआ है, पीके सोया हुआ है, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। जी जी, आप अगर इलेक्शन रूल्स के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करोगे तो आपके इलेक्शन को मानेगा कौन? जीपी के इलेक्शन आपके सामने ड्रामाबाजी का। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह खुलेआम नवाज शरीफ ऐलान कर रहे हैं, मरियम बीबी ऐलानात कर रही है, बसें पहुंच रही है, और इनकी अक्ल की मैं दाद देता हूँ, वहां वजीर आजम है पीपल्स पार्टी का। अब अगर सिंध हुकूमत जो है ना वो पेशावर 10 बसें भेजे, तो उसको ड्राइवर कौन देगा, तनख्वाह कौन देगा, क्लीनर को कौन तनख्वाह देगा, बस स्टॉप रूट कौन बताएगा, बस स्टैंड कौन देगा? तो अकल में बात ये अंजुम वकील साहब से पूछते हैं। अंजुम वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कभी पंजाबी बन जाते हैं, कभी कश्मीरी बन जाते हैं, कभी हिंदुस्तानी बन जाते हैं, इनका तो कोई पता नहीं कि अकल भी काम नहीं कर रहे। अंजुम वकील साहब, आप क्यों कभी कश्मीरी बन जाते हैं, कभी पाकिस्तानी बन जाते हैं, और जैसे अभी मंदो खैल साहब ने फरमाया कभी हिंदुस्तानी बन जाते हैं, क्यों करते हैं सर आप ऐसे? अंजुम वकील साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। जाती उम्र का नाम किसका है? हिंदुस्तान वो अपना सर मंदो खेल साहब की मैं स्टेटमेंट, अगर आप तक आवाज नहीं आ रही, तो मंदो खेल साहब ने कहा, हम तो जैसे कि आप जानते हैं अंजुम साहब, हमारे तो दिलों के वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन आपके इत्तेहादी आपसे पूछ रहे हैं कि आप कभी कश्मीरी बन जाते हैं, कभी पंजाबी बन जाते हैं, कभी हिंदुस्तानी बन जाते हैं, क्या मसला आपके साथ? और बसेस आपने कैसे भी हैं, हम पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, सब कुछ है। कौन कहता नहीं है? हम सब कुछ है। ये नहीं है, ये तो हम सुबैयत तो हम तो यकीन ही नहीं रखते। हम तो एक पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान जहाँ जब ये पाकिस्तान है, ठीक है ना जी। ये जो बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला का फजल करम से आप ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में ये वाजपेयी चल के लाहौर आया था, और वहाँ मेरारे पाकिस्तान पे गया था। तो ये सारी चीजें मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। इनके पूछे कि ये भी वजीर आजम रहे हैं, इन्होंने सर मोदी भी आया था बगैर वीजे के, वो कैसे आया था? वो जाती रिलेशनशिप था और उनके साथ, लेकिन वो तो मोदी का जो यार है वाली कहानी नहीं थी इसके अंदर। अंजुम वकील साहब सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जी। वो बात ये है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका वाले कहते हैं पाकिस्तान हमारा यार है, आज सऊदी अरब में कहते हैं पाकिस्तान हमारा यार है, आज कतर वाले कहते हैं पाकिस्तान हमारा यार है, आज ईरान वाले कहते हैं पाकिस्तान हमारा यार है। ये हमारी हुकूमत की जो कर दी है कि इतनी बेहतरीन स्वागतकारी जो की है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। जी जी। आप इस सफारतकारी में नवाज शरीफ साहब का भी रोल है अंजुम साहब? उसमें आपके खामोश रहे हैं। इनके दौर में पाकिस्तान ने, अंजुम साहब ये बताइए कि ऐसी जबरदस्त सफारतकारी में नवाज शरीफ साहब की भी गाइडेंस और उनका भी रोल है?
बिल्कुल वो बिल्कुल कैसे उनका करते रोल हैं? है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हीं का तो रोल। मुंतकिल साहब कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कैसे रोल रहा। तो फील्ड मार्शल ने और एक्चुअली धमाका करने वाले भी लोग नहीं है। आज 10 मई करने वाली मुस्लिम हुकूमत है, और इंशाल्लाह जो आज ईरान और अमेरिका में जो किरदार पाकिस्तान का है, वही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। बताइए जी मुंतकिल साहब, इतनी कमाल कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने पहले वो JF-17 बनाया, फिर उन्होंने सारी सफारतकारी कर ली, फिर उन्होंने वो एटम बम बनाया, फिर उन्होंने मोटरवे बनाई। सर आप क्यों नहीं देख पा रहे ये सारी चीजें मंदोखिल साहब? आप मुझे एक बात बता दे कि ये जो मोदी की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब की सालगिरह पे 500 लोगों को याद मिले कि मोदी आया था और पाकिस्तान को पता नहीं था, जिसमें अजीत ये आया डोभाल भी था मेरा ख्याल तो है। इसी वजह से हम कहते हैं मोदी के जो यार है, चलो उसको भी छोड़िए। आप मुझे बताओ कि ये जो दुनिया का अमेरिका और ईरान की तारीखी जो मुआहिदा करा है, इसमें शहबाज शरीफ पे क्या लेना देना था? वो तो बेचारे का तारक भी फील्ड मार्शल ने कराया था। शहबाज शरीफ का क्या, वो तो कह रहे नवाज शरीफ साहब ने लिखा है। ये जो इनका था वजीर खारजा, इसको तो पता ही नहीं है, सारा काम तो मुहसिन नकवी ने किए और फिर फील्ड मार्शल ने किए। इनको बेचारों को पता ही नहीं है, इनको तो सिर्फ ये बता दिए चाबी घुमा दी, उधर ये बोलना है, उधर ये बोलना है। ये तो बातें करने वाली नहीं है, चाबी घुमा के वजीर दाखिला हमारी हुकूमत के हैं, और वजीर दाखिला के क्या काम ईरान जाके मेरी बात सुनो, वजीर दाखिला को काम कर रहा था, वजीर दाखिला को काम कर रहा था, आपका वजीर खारजा तो पता नहीं कहाँ से बैठा हुआ था। सर वो अकील साहब, वो मंदोखिल साहब पूछ रहे हैं कि वजीर दाखिला का क्या काम था? आपके पास एक वजीर एक फॉरेन मिनिस्टर है, उसने सर क्यों नहीं किया ये काम? डिफेंस मिनिस्टर वजीर दाखिला ईरान का वजीर दाखिला आया है, वो तो अभी है ना, उनके तो लीडरशिप ही बाकी शहीद होगी ना सर, उनके तो बंदे शहीद हो गए, उनके पास तो चंद बंदे रह गए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वजीर दाखिला ने सारी वजारत खारजा को काम किया है। ये कौन सी वजीर दाखिला नहीं है, ये जमी वजीर खारजा नहीं है, ये असली है जो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं, नकली वजीर खारजा कौन है जी, और नकली वजीर दाखिला कौन है अंजुम साहब? पाकिस्तान को इसलिए मिली है कि सबने मिलकर काम किया है। फील्ड मार्शल असम मनीर ने किरदार अदा किया है, बिलाशुबा जी फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया। यही तो मंदोखिल साहब भी कह रहे हैं कि सियासी लीडरशिप कहाँ थी है पाकिस्तानी की हैसियत से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। सही। मुझे एक जुमले में मंदोखिल साहब इसको कंक्लूड कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में आप इस सियासी इत्तेहाद को कैसे देख रहे हैं? अकील साहब तो कहते हैं हम आप हमारे इत्तेहादी रहेंगे। मैं ये कहता हूँ ये प्लास्टिक के खिलौने हैं, किसी ने अगर चाबी घुमा दी गई तो ये टुम टुम के घूमता रहेगी और मुस्तफा कमाल, इनको और कोई काम नहीं है। जब तक चाबी उसको घुमाएगा कोई तो ये घूमते रहेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ चाबी के खिलौने और घूमते रहेंगे। मंदोखिल साहब ये इत्तेहादी कह रहे हैं, जी इत्तेहादी कह रहे हैं जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे इजाज़त। अकील अंजुम साहब, कादिर मंदोखिल साहब और बैरिस्टर साद रसूल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।